students, welcome and let's continue our problem set 2. First example, that is select the correct alternatives. So here for option is given. So only you have read this example carefully and which option is correct, that is to find out. So see first example, if a transverse intersect two parallel lines, then the sum of interior angles on the same side of the transversal is dash. So if two lines parallel to each other, that time suppose this is transversal, so this interior angle means one side of the transversal is 180 degree, means sum of इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो हमने देखा कि ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ इधर या इस तरफ बनने वाले जो एंगल होंगे उनका सम मींस एंगल ए प्लस एंगल बी दैट इज 180 डिग्री। सो करेक्ट आंसर इज सी दैट इज 180 डिग्री। देन सी सेकंड एग्जांपल, द नंबर ऑफ angles formed by a transversal of two lines is, अब दो लाइन पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल या फिर दो लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है तो टोटल कितने एंगल्स फॉर्म होते? तो फर्स्ट ऑप्शन इज 2, बी इज 4, सी इज 8 एंड डी इज 4. So here in this diagram you count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So total number of angle is 8. So again here option C is correct. Then third, a transversal intersect two parallel lines. If the measure of one of the angle is 40 degree, then the measure of its corresponding angle is dash. तो corresponding angle जैसे यहाँ पे जो एंगल होगा वही एंगल बी होगा, जो 4 पेयर्स बनते करस्पॉन्डिंग एंगल के, और उनमें से जो करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर्स मींस जोड़ी क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट होती है। तो अगर एक 40 डिग्री है तो दूसरा भी क्या होगा? 40 डिग्री होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। जैसे 4 इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज गिवन 76 degree, angle B is 48 degree, then what is angle C? So you know property of angle of a triangle, that is one theorem. So angle A plus angle B plus angle C means sum of angles of a triangle is 180 degree. So जो ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो दो दिए हैं तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो एंगल A plus angle B plus angle C equal to 180 degree. This is theorem, its property. And angle A is 76, B is 48 plus angle C equal to 180 degree. Then their sum is 14, 11 plus 2, 12 plus angle C equal to 180. And therefore angle C equal to 180 minus 124. That is 10 minus 4, 6, 7 minus 2, 5. Means 56 degree. So here option B is correct. Then question number 5. Two parallel lines are intersected by a transversal if the measures of one of the alternate interior angle is 75 degree. जैसे यहाँ पे corresponding था, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 3, वैसे यहाँ पे क्या है? इंटीरियर एंगल is 75 degree, then the measure of the other angle is dash. So again you know in alternate angle are also congruent. So if one angle is 75, then second angle means its corresponding alternate angle is also 75 degrees. So correct answer is option C.
Let's see question number second. Ray PQ and ray P are perpendicular to each other. Then point B and A are in the interior of exterior of angle QPR respectively. Ray PB and ray PA are perpendicular to each other. Then draw a figure showing all these rays and write a pair of complementary angles, a pair of supplementary angles, a pair of congruent angles. So student, here first we draw a diagram from the given information. तो जो हमें इंफॉर्मेशन दी है उसके आधार पर हमें क्या करना है, पहले एक डायग्राम ड्रॉ करनी है, उसके बाद उस डायग्राम से रिलेटेड हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने, जैसे ए पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एंड ए पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल. So see first line, ray PQ and ray PR are perpendicular to each other. Perpendicular to each other means they make 90 degree angle, means like this. So this is straight and here angle is 90 degree. So see, first we draw line or ray PQ. So suppose this angle is 90 degree and ray PQ. So write P here. So suppose this is Q, means ray PQ and ray PR. यहाँ पे R लिखेंगे. हो गए फर्स्ट इंफॉर्मेशन. रे PQ and ray PR are perpendicular to each other. Then point B and AR. अब ये ध्यान देना आपको, point B and A are in the interior and exterior of angle QPR. Means B कहाँ है? B इंटीरियर मीन्स अंदर की तरफ, और ए वो कहाँ है? एक्सटीरियर. तो इस एंगल के इंटीरियर में एक पॉइंट क्या करना है? बी लेना है, ये बी, और यहाँ पे ए. लेकिन उसको भी कंडीशन दिया है कि रे पीबी. अब जो हम लोग ये रे ड्रॉ करेंगे, रे पीबी, हो गया रे पीबी, एंड रे पीए मींस दिस रे पीए. अगेन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. यहाँ पे भी ये जो एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री का है. तो डायग्राम समझ में आ गई आपको कि फर्स्ट दिस रे PQ and ray QR both are perpendicular to each other. Then point B is interior and A is exterior of angle QPR and both are perpendicular to each other. यहाँ पे दिया है कि ray PB and PA are perpendicular to each other, means इन दोनों का सम. कौन सा? ये एंगल जो B PA बना, ये भी क्या है? 90 डिग्री है, और R PQ ये भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मींस 90 डिग्री का है. देन ड्रॉ द फिगर. मींस अब हमारी डायग्राम क्या हो गई है? कंप्लीट हो चुकी है. पहला क्वेश्चन पूछा है ए पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. अब यहाँ पे जितने भी एंगल बनते हैं आपको बताना है कि उनका सम. कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मींस टू एंगल्स if their sum is 190 डिग्री. सप्लीमेंट्री में क्या होता है? 190 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री होगा मींस 90 डिग्री. तो अभी अभी हमने यहाँ पे देखा कि ये दो एंगल जो बन रहे हैं यहाँ पे, ये लार्जर है और इसी के अंदर ये बी बना है, मतलब ये दोनों का सम कितना हो गया? 90 डिग्री.
वैसे ये और ये 90 है बड़ा पी पी ए, तो इसी में दो एंगल बन रहे हैं, ये डी पी आर और आर पी ए, ये भी क्या है, दोनों को मिलकर 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ पेयर्स पूछे, तो पहला पेयर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट पेयर, पहला आंसर लिखते समय मैंने आर से शुरू किया, एंगल आर टी बी एंड एंगल बी पी क्यू। देखिए इन दोनों को अगर प्लस किया हमने, आर पी बी एंड बी पी क्यू, तो ये लार्जर एंगल क्यू पी आर पी क्यू मीन्स 90 डिग्री हो गया। तो ये फर्स्ट पेयर हो गया कॉम्प्लीमेंट्री की, जिनका सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। सिमिलरली सेकंड पेयर के लिए आपको ये दो रेस में बनने वाले एंगल मींस बी पी ए, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ये दो एंगल जो है ये और ये भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, तो उनका नाम थ्री लेटर में लिखना है बी पी आर एंड एंगल आर पी ए, a pair of supplementary angles। सप्लीमेंट्री मीन्स जिनका सम क्या होना चाहिए, अब 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 डिग्री के लिए जो हमने बड़े एंगल बनाए 90 डिग्री के, उन्हीं का सम क्या होगा, 180 होगा। तो यहाँ पे एक ही पेयर आएगा, एंगल 90 डिग्री का बना है आर पी क्यू जो 90 डिग्री का है, एंगल आर पी क्यू एंड एंगल दूसरा 90 डिग्री का कौन सा है, बी पी ए, और ये 90 और ये 90 मिलके क्या हो जाएंगे 180। तो यहाँ पे आ जाएगा बी पी ए, ये एक पेयर होगा। उसके बाद हमें पूछा है कॉन्ग्रुएंट एंगल। अब कौन कौन से एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो पहले ऊपर ही हमने लिखा है कि ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री है, दोनों का सम 180 हो रहा है, मींस ये क्या हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल। तो कॉन्ग्रुएंट ही होंगे, तो पहला पेयर हम लोग इसी को लिख लेते हैं कि आर पी क्यू एंड डी पी ए बोथ आर 90 डिग्री। और सेकंड पेयर में हमें दिखाना है कि ये रे है, तो हम यहाँ पे जो छोटे जो एंगल आ रहे हैं उनका नाम लिख सकते हैं, कौन सा, डी पी क्यू, और उधर से लिखना होगा तो ए पी आर। सो एंगल डी पी क्यू एंड एंगल ए पी आर और आर पी ए। तो ऐसे दो कॉन्ग्रुएंट एंगल बन जाते, कोई भी एक पेयर आप लिख सकते।